कैसे हैं आप सब? होप यू guys are doing well. मैं भी ठीक हूँ. So let's get started with yet another vlog without any further ado. So जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं बहुत ही comfortably seated हूँ. So today is going to be a sit down video where I'm going to talk about my recent trip to Bali. अगर आपने मेरे vlogs देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं recently Bali गई थी and I'm just back, so I'm heavily tanned. So I thought that let's make an informative vlog which will basically talk about everything that you need to know before going to Bali. Things you need to take care in Bali, and anything else that I think must or is important for you to know. तो मैंने सोचा एक informative vlog बनाते हैं जहाँ पर I'll chalk out all these details for you so that it is helpful for you to plan your trip to Bali and hopefully influence you to plan a trip to Bali soon. So चलिए ये vlog को start करते हैं. तो मैंने सारी चीज़ें बैक ट्रैक करके एक लिस्ट बनाई है जिसके थ्रू आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक थ्रू दैट, एंड दिस इज़ द बेस्ट रिकलेक्शन दैट आई हैव ऑफ एवरीथिंग. अगर मेरा कोई भी पॉइंट छूट जाता है या आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा. अगर वो मेरे नॉलेज में है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूँगी. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिकट से. सो अ टिकट राउंड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू बाली वुड कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 30 to 45. It all depends on how soon or how late you book your flights. मैंने बहुत लेट बुक किया था. I had booked like 2 days prior to the trip and मुझे 40 to 45 के रेंज में पड़ा था because I also booked 2 different flights. This trip was originally planned by my parents and I just tagged along last minute. मैंने बोला नहीं मैं भी जाती हूँ. तो मेरी सारी जो भी bookings and tickets सब कुछ last minute है तो मुझे थोड़ा expensive पड़ा, but I think it was okay because बहुत पहले से pre-book करने से भी there are chances that things might not happen. Some or the other issue comes up. So I always prefer booking my flights 1 week prior so that I'm sure that I'm going to be traveling. तो मुझे पड़ा almost 40 to 45 के रेंज में, and that too because जाने समय मुझे वही फ्लाइट करना पड़ा जिसमें my parents were there. My parents had a round trip of from the Air India flight and I had to take the Air India flight. So Air India की जो फ्लाइट है वो बैंगलोर से दिल्ली में एक लेओवर एंड देन दिल्ली से बाली का आपको सफ़र करना पड़ेगा. दिल्ली से बाली आई थिंक इज अबाउट 5-6 hours. एंड आने समय जो मैंने फ़्लाइट ली बिकॉज दे वर स्टेइंग लॉन्गर एंड आई रिटर्न अर्लियर, मैंने जो फ़्लाइट ली है वो इंडिगो की फ़्लाइट थी. इट वॉज अ डायरेक्ट 6 hours फ्लाइट एंड नॉन स्टॉप थी, हैसल फ्री थी. इंडिगो की फ़्लाइट जो थी वो बेसिक फ़्लाइट थी. देयर वाज नो in-flight entertainment. Khana is something which is paid. Air India of course has an in-flight entertainment. They have meals that they give during the flight, but it is not non-stop, which makes it a hassle. Non-stop flight is any day hassle free. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप थ्रू एंड थ्रू चेक्ड इन हो, आपका लगेज आपको बाली में मिल जाएगा. while you are going, Air India also checked in a baggage through Bali, but while coming my parents had to collect the luggage at Delhi airport, do the immigration and then check in the baggage again for the Bangalore flight. But with Indigo I was like वहाँ पर baggage check in किया, मेरे कोई baggage था नहीं, so anybody who had checked in their baggage they would get it directly in Bangalore. So a non-stop flight any day is something that I would suggest because it's less taxing. Because जब हम यहाँ से बाली के लिए निकले थे हम पूरे दिन ट्रैवल ही कर रहे थे तो हम काफ़ी थक गए थे. नॉन स्टॉप फ्लाइट आप चढ़े, आप 6 घंटे 7 घंटे फ्लाइट में आपने बिताए एंड आप वहाँ पर पहुँच गए. सो द जर्नी इज लिटिल लेस टैक्सिंग. सो माई सजेशन, टेक अ नॉन स्टॉप फ्लाइट. एंड अगर आपको बजट या कंस्ट्रेन ट्रैवल करना है तो ट्राई बुकिंग लिटिल अर्लियर. एंड Indigo maybe there are no meals, but you can pre-book the meals and they keep selling tea, coffee and those packaged foods throughout the 6 hours. It's not that they don't sell items, so do carry cash, card, and that should get you sorted.
सो ये रहा आपका टिकट कैन बी एनीवेयर बिटवीन द रेंज ऑफ 30 to 45। आपका बेस्ट बेट यही है कि आप बहुत जल्दी भी बुक करेंगे तो आपको 35 तो पड़ेगा ही राउंड ट्रिप, एंड अगर आपने थोड़ा लेट किया तो आपको 40 to 45 के बीच में आपका राउंड ट्रिप बुक हो जाएगा। एंड फ्लाइट वाइज बहुत फ्लाइट्स होती हैं, बट आई थिंक एयर इंडिया वॉज अ गुड फ्लाइट। हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट ठीक है, इट वॉज गुड फ्लाइट। बट आने समय आई थिंक आई रियली हैड अ गुड टाइम, बिकॉज मैं इंडिगो में आई तो मैंने प्री बुक किए थे अपने सीट्स वगैरह, तो मुझे काफ़ी लेग स्पेस वगैरह था, बट वाइल गोइंग आई थिंक दैट वाज अ लिटिल प्रॉब्लम, लेग स्पेस वाज अ प्रॉब्लम इन द एयर इंडिया फ्लाइट, बट नेवरदलेस। तो ये हो गया आपका टिकट। नाउ व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल? द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू बाली इज बिटवीन अप्रैल टू सितंबर। तो अभी ही सीजन स्टार्ट हुआ था एंड हम अभी निकल पड़े थे वहाँ पर। सो थैंकफुली हमने कोई बारिश, कोई भी कुछ अजूबा वेदर में देखा नहीं। बहुत गर्मी थी, सो वो एक चीज़ था, बट द वेदर वॉज गुड उनके हिसाब से। ठीक है। अब वीज़ा के उनके दो ऑप्शंस हैं, एक है ऑन अराइवल वीज़ा और एक है ई वीज़ा, जो दोनों की ड्यूरेशन आपको 30 डेज़ की मिलती है। जो ऑन अराइवल वीज़ा है उसके लिए आपको 1-1.5 घंटा लाइन में रहना पड़ेगा, आपको कैश रेडी रखना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे। तो अगर आपका बहुत लास्ट मिनट ट्रैवल है तो आपके पास वो ऑप्शन है ऑन अराइवल, वरना माई सजेशन वुड बी ई वीज़ा आप कर लीजिए। आपको 1 या 2 वर्किंग डेज में वो मिल ही जाएगा। उनके अगर वर्किंग डेज है तो आपको वो वीज़ा मिल जाएगा आपके इनबॉक्स में। You have to fill in your basic details, make a payment, and you're sorted. So, e-visa any day more preferable than the on-arrival visa. वहाँ जाके आप इतने 6-7 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद फिर 1.5 घंटा लाइन में लगना, आई डोंट थिंक सो इट्स एडवाइजेबल। मेक योर लाइफ ईजी एज मच एज पॉसिबल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इज व्हाट माय सजेशन वुड बी। जब आपका टिकट और वीज़ा हो जाता है उसके बाद आपको 2 और चीज़ें करनी होती है, एक है कस्टम डिक्लेरेशन और एक है हेल्थ डिक्लेरेशन। अगेन योर पर्सनल डिटेल्स, देन योर ट्रैवल डिटेल्स, योर बैगेज डिटेल्स, एंड आपके पास 2 QR कोड्स जनरेट होंगी। तो जब आपकी इमिग्रेशन हो जाती है बाली में तो यू जस्ट हैव टू स्कैन दोज कोड्स एंड यू आर सॉर्टेड एंड यू आर गुड टू गो। और एक चीज़ है जो मैंने काफ़ी व्लॉग्स में देखी थी, एंड ऑल्सो इन बाली एयरपोर्ट आई सॉ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टूरिस्ट टैक्स, बट दैट्स नॉट अ मैंडेट। हमने नहीं पे किया था कोई टूरिस्ट टैक्स। आई थिंक आउट ऑफ गुडविल यू कैन पे दैट टैक्स। आई डोंट नो द अमाउंट, बट इफ यू आर रियली कीन यू कैन प्रॉब्ली चेक दैट आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड पे दैट टैक्स आउट ऑफ योर गुडविल। तो आपकी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज द इंश्योरेंस। मेक श्योर whenever you're traveling internationally, अगर वो कंट्री मैंडेट करे या ना करे, you should have an insurance because medical is expensive in most of the countries and in Bali also medical assistance is expensive। तो आप यहाँ से इंश्योरेंस कर लीजिए। मैंने अपना इंश्योरेंस जो एक बेसिक वाला इंश्योरेंस न्यू ऐप से करवाया था, इट वॉज इन द रेंज ऑफ 400 to 500। मैं उसका डिटेल्स लिंक कर दूंगी, आई विल पुट इट आउट हियर, सो आप वो देख सकते हैं। तो आपका टिकट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा हो गया, आपने कस्टम डिक्लेरेशन फिल कर दिया, हेल्थ डिक्लेरेशन फिल कर दिया, तो आप सॉर्टेड हैं फॉर स्टार्टिंग योर जर्नी। नाउ पैसे की तरफ आते हैं। नाउ पैसे वहाँ पर चलता है रुपया। तो अभी तक तो सबको पता है कि उनकी करेंसी थोड़ी वीक है एंड आप वहाँ पर लाखों में खेलते हैं, आप वहाँ पर जाके लेजिट लखपति ही हैं। तो पैसे के लिए मैंने क्या किया था, आई हैड न्यू कार्ड, राइट। तो ये न्यू कार्ड मेरे पास था जिसके भरोसे मैं गई थी। आई वाज कैरिंग नो $US। तो आप इसमें पैसे लोड कर सकते हैं INR में, एंड आप जो भी देश में जाएंगे उस करेंसी में आप वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं इफ दिस कार्ड इज सपोर्टेड इन देयर ATMs। तो वहाँ पर मैंने इस कार्ड से पैसे विड्रॉ किए, एंड ऑफ कोर्स बाली इज कैश फ्रेंडली, तो आपको वहाँ पर कैश विड्रॉ करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स देयर बी सेट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस एंड GST सर्विस चार्जेस जो आपको बेयर करने पड़ेंगे व्हेन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस कार्ड, बट इट मेक्स योर लाइफ मच ईजियर। एंड देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स कि आप एक बारी में कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ 5 times in a day, so I put all those details also. I don't remember the numbers and I don't want to randomly tell the numbers. So ये है पैसे की बात। Do carry some $, like my parents were carrying some $, with them. I was carrying no $. मैं इसी कार्ड के भरोसे में थी। So it's easier to convert from dollars to India. Don't go in the hope कि Indian rupees वहाँ पर आप easily convert कर पाएंगे। तो अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है फॉर द कार्ड, तो आप अपना रुपीस को डॉलर में इंडियन एयरपोर्ट्स में कन्वर्ट कराइए, एंड वहाँ पर आप जाके डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कराइए। दैट्स एन ईजियर ट्रांजैक्शन, आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा।
वहाँ पर भी काफ़ी स्कैम होता है। तो मेक श्योर दैट आप मनी काउंट करें, ट्रांजैक्शन फीस जो भी वो चार्ज कर रहे हैं, रेट्स देखें वो सही आ रहा है कि नहीं। ऑल्सो बिगर डिनोमिनेशन जो डॉलर्स के होते हैं उसके अलग प्राइजेस होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशन वो सेम प्राइस पे नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं कटौती करने की कोशिश करते हैं दीज करेंसी कन्वर्टर मनी चेंजिंग यूनिट्स, राइट। तो या जो मेरा न्यू कार्ड था उससे मैंने एयरपोर्ट में ही कैश विड्रॉ किया। एयरपोर्ट में आपके पास 3 ATMs हैं, तो तीनों ATM में तो नहीं चला, एक BNI मनी चेंजर का ATM था, वहीं पर ये कार्ड चला जहाँ पर मैंने कुछ बेसिक अमाउंट विड्रॉ किया एंड दैट वाज वेयर वी गॉट सॉर्टेड। अब आते हैं एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने होटल या एयरबीएनबी जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो टू अरेंज फॉर अ फी ऑफ कोर्स, या वहाँ पर आप एप्स डाउनलोड कर लीजिए जाने से पहले। एक है ग्रैब, गोजेक और क्लोक, ये 3 ऐप्स यहाँ से जाने से पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एयरपोर्ट में आपको वाईफाई तो मिलता ही है, तो आप ग्रैब के ऐप से होटल के लिए कैब बुक कर सकते हैं। बट वहाँ पर एक ग्रैब लाउंज भी है जहाँ आप जाके बैठ सकते हैं, AC लाउंज है, दे विल असिस्ट यू टू बुक योर कैब फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल। सो वो आपके पास ऑप्शन भी है, बट यू हैव ग्रैब एंड गोजेक एज वेल। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आराम से लाउंज में बैठिए, दे विल हेल्प यू विथ योर बुकिंग एंड देयर इज अ फी दैट इज लाइक अ टोल दैट इज चार्ज। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको ड्राइवर हो सकता है बोल सकता है कि आपको मुझे एक्सप्लिसिटली ये फीस देना पड़ेगा, आप मुझे कैश में दे दो। कुछ नहीं है, ग्रैब के जब आप बुकिंग करते हो ऑटोमेटिकली एडेड है, सो यू डोंट हैव टू गिव द ड्राइवर एनीथिंग एक्सप्लिसिटली। इट्स लाइक द टोल, राइट। जब भी हम ओला उबर लेते हैं यहाँ पर टोल एक रहता है जो ऑटोमेटिकली एडेड है, आपको पे नहीं करना होता है। तो वो वाला अमाउंट भी मैं डाल दूंगी यहाँ पर। अब आप पहुँच गए हैं होटल, ठीक है। तो और एक चीज़ है, होटल पहुंचने से पहले सिम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वहाँ पर सिम आप टेलीकॉम सेल कर लीजिए, उसकी अच्छी कवरेज रहती है, वैलिडिटी आपको 30 डेज का मिलता है एंड 5 हॉटस्पॉट डिवाइसेस सपोर्ट करता है। हमने फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट टेक इट फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इज एक्सपेंसिव, बट अगर आपको थोड़ा हैसल फ्री रहना है तो आई वुड सजेस्ट टेक इट फ्रॉम द एयरपोर्ट सो दैट यू हैव द कनेक्टिविटी राइट इन योर हैंड्स। तो हम जब होटल पहुँचे उसके बाद फिर हमको वी हैव टू वॉक अराउंड, वी वेंट टू सेमनाक इन द इवनिंग। तो वहाँ पर हमको पूछना पड़ा कि सिम कहाँ मिलेगा। तो सेमनाक विलेज हैज़ अ स्मॉल काउंटर जहाँ पर आपको टेलीकॉम सेल का सिम मिला, जहाँ पर आपको टेलीकॉम सेल का सिम मिल सकता है। तो वहाँ पर से हमने परचेज किया। वहाँ पर भी आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है एंड मेक श्योर जब आप सिम लें तो आप उसको पूरी तरह एक्टिवेट करें, उसके बाद ही वहाँ से निकले। मेक श्योर इट्स वर्किंग, मेक अ कॉल, ड्रॉप अ मैसेज, एवरीथिंग इज वर्किंग एंड देन यू लीव फ्रॉम द प्लेस। इट विल टेक अप टू 30 to 45 minutes, but please spend the time. Once it's activated, everything is working, then only leave the place, right? उसके बाद आप कहाँ पर ढूंढोगे किसी को भी, कुछ भी इश्यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर हर जगह जाने के लिए आपको व्हाट्सएप नेट कनेक्टिविटी चाहिए, फ़ोन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉलिंग फैसिलिटी चाहिए। तो मेजरली वहाँ पर सब व्हाट्सएप कॉलिंग से ही कम्युनिकेट करते हैं। तो नेट इज़ अ मैंडेट, बाकी कुछ हो ना हो। तो वो वाली डिटेल्स भी मैं डाल दूँगी। और क्या, ठीक है, इसकी 30 डेज की वैलिडिटी होती है, ये तो मैंने बताया है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है समथिंग कॉल्ड और एक चीज़ है, आप सिम प्री बुक कर सकते हो क्लुक से भी। क्लुक ऑल्सो हैज़ दैट ऑप्शन टू प्री बुक द सिम्स, बट वो आपको 1 या 2 दिन में मिलता है। अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो आपको ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और एक चीज़ जो मैं यहाँ जाने से पहले मुझे पता चला, क्योंकि आई वॉज वेरी कीन ऑन एक्सप्लोरिंग द लोकल फूड। मैं देखती थी इतने अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ एंड बार्स एक्सेट्रा। आई वॉज लाइक लोकल फूड ट्राई करना है। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बाली वैली जो वहाँ पर काफ़ी कॉमन है। पीपल से कि वहाँ के लोकल पानी से आपको मुँह भी कुल्ला नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रशिंग ऑल्सो यूज मिनरल वाटर। बट इफ यू स्टेइंग इन गुड होटल्स आई थिंक दैट यू कैन स्किप, दिस इज मेजरली फॉर Airbnbs probably. But Bali Belly is a thing. Do consume only mineral water when you're there, or boiled water over there, because your stomach can get upset. खाना बहुत ही क्राउडेड जगह में खाइए जहाँ पर आपको दिख रहा है कि खाना जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है, वरना द बाली बेली थिंग विल क्रीप इन, आपका अपसेट स्टमक, फटीग एंड ऑल दोज थिंग्स विल हैपन, एंड व्हाई डू यू वांट टू लैंड अप इन अ मेस। सो इंश्योर दैट ईटिंग इन गुड प्लेसेस, फेमस प्लेसेस, लोकल फूड अगर आप
शौकीन है फूड एक्सप्लोरेशन के तो करिए, बट बी केयरफुल अबाउट योर स्टमक। जहाँ पर भी हो सके आप मिनरल वाटर पीजिए, वहाँ पर मिनरल वाटर आपको आराम से मिल जाएगा इन एनी ऑफ द मार्ट्स। वी फिगर्ड आउट दैट के मार्ट हैज़ द चीपेस्ट मिनरल वाटर, एंड क्योंकि हम 3 जन थे तो हमने हमेशा 1 लीटर के ऊपर वाला ही बॉटल लिया। इट्स डिफिकल्ट टू कैरी बट ऑफ कोर्स इट्स बेटर, मोर वाटर इज ऑलवेज बेटर। यू हैव टू बी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम बिकॉज धूप बहुत है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक्वा का पानी जो होता है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 90,000 का पड़ता है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है। पानी सस्ता है बट उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ पानी में भी रेंज है। जैसे एक्वा का पानी हमको एम मार्ट में 90,000 पड़ा, के मार्ट में 70,000 पड़ा, एंड नेस्ले का पानी 65,000 आइडिया का पड़ा। तो आप देख लीजिए, मतलब मुझे लगता है एनी पेनी सेव्ड इज अ गुड थिंग। सो आई ऑलवेज बिलीव यू नो इन सेविंग मनी। तो मैंने तो देखा कि हाँ पानी मुझे कहाँ सस्ता मिल रहा है, जो बहुत लेट फिगर आउट हुआ हमें। मुझे लगा भी नहीं था कि पानी हर जगह डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सेम ब्रांड का पानी हर जगह कैसे डिफरेंट हो सकता है। सो बट या इट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि के मार्ट में पानी सस्ता है, नेस्ले का पानी सबसे सस्ता होता है, एक्वा का पानी इज लिटिल एक्सपेंसिव जो हमको मिला। मुझे कोई आइडिया नहीं कि प्राइस क्या है, कहीं पर भी MRP लिखा नहीं रहता है बॉटल में, वॉट एवर द मार्ट्स आर प्रिंटिंग। तो आपका बाली बेली के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहिए, मिनरल वाटर पीजिए, बॉइल्ड वाटर पीजिए, जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर खाइए, एंड ऑफ कोर्स सतर्क रहिए। आपकी बॉडी है, आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं वैसे ही आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, कहाँ खाना है क्या नहीं करना है। लोकल ट्रैवल के लिए तो मैंने बोल ही दिया कि यू नो आप ग्रैब, क्लुक, गुजैक ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। क्लुक इज़ मेजरली फॉर बुकिंग योर एक्सपीरियंसेस, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। ग्रैब एंड गुजैक फॉर ऑर्डरिंग फूड, ऑर्डरिंग कैब्स, एंड 2 व्हीलर्स भी वहाँ पर होते हैं। 2 व्हीलर्स ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक। सो कैब्स हमने जितने भी बुक किए थे हमने ग्रैब से ही बुक किए थे, एंड वो काफ़ी इंस्टेंटली आ जाते हैं। आप बुक करोगे एंड विद इन 5 मिनट्स आपको मिल जाएंगे आपकी टैक्सीज, तो वो बहुत ही कन्वीनियंस है आपके पास। तो एटलीस्ट हम जहाँ रहे थे सेमनाक में तो ईजली वी वर गेटिंग द कैब्स। अब वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने का ऑप्शन है, इंडियन के ऑप्शंस आपको काफ़ी मिलेंगे। वहाँ पर हमने शिव सागर देखा, कैलाश पर्वत था, बहुत एक स्ट्रीट ही है सेमनाक में जहाँ पर पूरा स्ट्रीट में सिर्फ इंडियन खाना ही है। तो हमने जितने भी दिन वहाँ पर थे, लंच डिनर में हमने इंडियन खाना ही खाया है, एंड खाना इज़ गुड ऑल्सो। तो आपको इंडियन खाने के ऑप्शंस मिलेंगे। बट अगर आप वेजिटेरियन, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन बट आई स्टिल प्रेफर ईटिंग वेजिटेरियन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्टमक एंड आई डोंट वांट टू एंड अप इन अ मेस ईटिंग मेडिसिन एक्सेट्रा। सो आई ट्राई टू ईट मिनिमल एंड ईट वेजिटेरियन एज मच एज पॉसिबल। तो मैंने कुछ कप नूडल्स भी कैरी की हुई थी यहाँ से, मैगी की कप नूडल्स कैरी की हुई थी, जो मैं अगर मुझे कुछ मंच करने की इच्छा हो रही थी तो मैं वो सब खाती थी। आई कैरीड फ्यू मंचीज ऑल्सो फ्रॉम हियर बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड, वेज एंड नॉन वेज देयर इज अ वेरी थिन लाइन। दे डोंट अंडरस्टैंड वेरी मच कि वेज और नॉन वेज में क्या होता है। आजकल ये टर्म है वीगन, बट इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है कि वेज क्या है नॉन वेज क्या है, उनके लिए इतना कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके कंस्ट्रेंट्स है तो आप अपने आप को रेडी रखिए, आप अपना फूड उस तरह से ट्रैवल मतलब कैरी करिए। लाइक यू नो आई कैरीड अ बंच ऑफ कप नूडल्स एंड देन आई कैरीड फ्यू मंचीज़, फिर कुछ चॉकलेट्स मैंने कैरी की थी, एंड ऑफ कोर्स डू कैरी मेडिसिन्स। बेसिक मेडिसिन्स जो होती हैं आप यहाँ से कैरी करिए बिकॉज मेडिसिन्स भी अगेन वहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। तो मैंने बेसिक नॉशिया, फटीग, अपसेट स्टमक, हेडेक्स, ORS, डिहाइड्रेशन के लिए कुछ मेडिसिन्स मैंने कैरी की थी। तो बेसिक ट्रैवल मेडिसिन जो होती हैं आप प्लीज़ कैरी करें, एंड ऑफ कोर्स बैंडेड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? आई थिंक you get the gist, right? Basic medicines जो आपके लिए ज़रूरत है आप उसको कैरी करें। Better safe than sorry. I always am in that mode, right? अब आते हैं फिर लैंग्वेज दे स्पीक Balinese। गाइड्स आपको बोलते हैं कि ये गाइड इंग्लिश सब एक्सपर्ट हैं, बट वहाँ की मेजॉरिटी लोगों को ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, बेसिक इंग्लिश समझते हैं। दे ट्राई एज मच बट दे स्टिल लर्निंग। तो कम्युनिकेशन कैन बी अ प्रॉब्लम। सो जैसे आपको बार्गेनिंग करना है, लोगों से बात करना है, तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। जब पैसों की बात होती है तो आप कैलकुलेटर खोल के पैसा दिखा सकते हैं कि इतना है अमाउंट, तो वो समझ जाते हैं। सो लैंग्वेज इज़ बालिनीज, इंग्लिश मिनिमल है, समझते हैं, बट यू नो देयर इज स्टिल अ बिग गैप।
कमिंग टू व्हाट एल्स, होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी, ये आपकी कंप्लीट आपकी पर्सनल चॉइस है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एयरबीएनबी. आई प्रेफर स्टेइंग इन होटल्स फ्रॉम अ सेफ्टी एस्पेक्ट. स्टे इन अ गुड होटल सो दैट यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड. आप उसके रिव्यूज पढ़ सकते हो. एयरबीएनबीज ऑफ कोर्स आर चीपर, फैंसियर, बट होटल्स गिव मी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट ये सेफ है. तो आई ऑलवेज प्रेफर होटल्स. आपको होटल्स आपके रेंज में मिल जाएंगे, मतलब होटल्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, बट आपको जो भी रेंज में होटल्स चाहिए, लाइक you will get them. And hotels there are comparatively cheaper only, इतना ज़्यादा नहीं है, but on an average अगर आपको mid range में लेना है तो I think आपको on an average 6,000 to 7,000 में अच्छे hotels मिल जाएंगे in good locations. One thing don't forget is carry sunscreen and apply and reapply a lot of sunscreen again and again in every 2 to 3 hours. I got sunburnt. मैंने हाथ पैर मुंह में लगाए थे, but I was not reapplying and I missed my neck area and I got badly sunburned. I'm tan but I'm burnt over here because मैंने ये area पे लगाया नहीं था sunscreen. तो do carry a lot of sunscreen. Keep reapplying. Reapplication is the key and don't be confused in the sunscreen because वो ही आपको बचाएगा. एंड अगर हो सके तो स्कार्फ या कैप या हैट वहाँ से खरीद लीजिए, आप यहाँ से ले जाइए, बट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन. द सन इज लेजिट स्कॉचिंग, मतलब यू कैन फील दैट पियर्सिंग इन, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो ये हो गया हमारा सनस्क्रीन. और क्या कवर करना है? शूज़. वहाँ पर हर जगह आप जो भी साइट सीइंग के लिए जाएंगे आपको थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे है हर जगह. फैंसी शूज़ न पहने. अगर आपको फ़ोटोज़ के लिए चाहिए तो आप कैरी करिए फैंसी शूज़, जहाँ पर आप लोकेशन में जाए चेंज करिए, बट डू कैरी और वेयर कंफर्टेबल शूज़ और क्रॉक्स, वट एवर सूट्स यू, बिकॉज पानी रहेगा, बीच है वगैरह, तो आपकी जो भी कंफर्ट है उस हिसाब से अपने शूज़ चूज़ करिए, बट वेयर कंफर्टेबल शूज़ विच हैव गुड ग्रिप्स. जैसे नुसा पेनिनसुला में जब हम गए थे, देयर वाज दिस केलिंग फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बीच, बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है. तो वहाँ पर लेजिट ऐसा था स्टीप, उठने समय, नीचे उतरने समय तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उठने समय आपके शूज़ की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि वहाँ रेलिंग वगैरह कुछ नहीं है. तो वह कंफर्टेबल शूज़. और अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचानी है, ड्रेसेस पहनने हैं, तो उस लोकेशन में जाके आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट वह कंफर्टेबल शूज़ फॉर वॉकिंग एंड हाइकिंग एक्सेट्रा. मेजर ऑफ द स्पॉट्स जो होते हैं, अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचवाने होते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा. अगर आपके पास उतना टाइम है, आपके पास इतनी शिद्दत है, कन्विक्शन है कि आप उतना वेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ डू वेट. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रीच ऑल द प्लेसेस अर्ली एंड क्लिक द डिज़ायर्ड फोटोज़. बट बाली इज़ लेजिट एन इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस. मतलब हर जगह उन्होंने ऐसे बनाई भी है, उसको मॉडल भी कर दिया है कि एवरी प्लेस सीम्स लाइक एन इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको समझेगा, एवरीवेयर आई गो आई फील दैट इंस्टाग्राम हैज़ मेड बाली व्हाट इट इज़, और टिकटॉक maybe, because you'll find a lot of these influencers going around taking videos, making those shots, reels, and putting out there, going live right on the location, and बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कंटेंट के साथ. बट हाँ, मेजर स्पॉट्स में अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचवानी है तो आपको 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है. जैसे हंडारा गेट में देयर इज़ अ टाइम, और एक कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पर आपको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर आपका टाइम आता है, यू कैन क्लिक द फोटोज़. उसके लिए एडिशनल पैसे भी देने पड़ते हैं बाय द वे, तो आपको वैसा अपना प्लान करना पड़ेगा. अगर मेरी सजेशन रहेगी, आप साइट सीइंग के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल निकल जाइए एंड धूप का समय अवॉइड करिए. एनीवे बाली में सब चीज़ें 7 बजे तक, साइट सीइंग वाली चीज़ें 7 बजे तक बंद हो जाती है. बाली लेजिट डज नॉट हैव एनी स्ट्रीट लाइट. जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो रात को इट वाज लाइक ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग इन द ब्लाइंड. नो स्ट्रीट लाइट्स, यू जस्ट ट्रैवलिंग इन द डार्क. वो ड्राइवर और गूगल मैप्स के भरोसे वो आप ट्रैवल कर रहे हो, तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है. कोई भी लोकल अट्रैक्शन, साइट सीइंग प्लेसेस 7 बजे के बाद खुले नहीं होते हैं. तो एज मच एज पॉसिबल कवर कर लीजिए अपनी सारी जो साइट सीइंग वाली आपके बकेट लिस्ट है बिफोर इन द अर्ली आवर्स itself. The last thing probably that I want to talk about is
ऑल्दो इट्स हिंदुइज्म इज़ वेरी प्रेवलेंट ओवर देयर, बट आप टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते हो, वहाँ पर उनके ही लोग जा सकते हैं. एंड आई वुड से रिस्पेक्ट द कल्चर. दे हैव सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑन द काइंड ऑफ ड्रेसेस और हाउ यू शुड बी शोइंग योरसेल्फ अप देयर. सो प्लीज़ डू रिस्पेक्ट द कल्चर, बिकॉज उनके लिए वो उनका टेम्पल है, हमारे लिए वो एक साइट सीइंग प्लेस है. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट्स एट द एंड अ प्लेस ऑफ वर्शिप. तो जहाँ पर भी आप जाएं, डू रिस्पेक्ट द कल्चर. डोंट just be very irrational. Respect the culture and respect their boundaries. तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, and they'll also be more welcoming to everybody who's coming there. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड शॉपिंग इज़ वन थिंग दैट ऑफ कोर्स वहाँ काफ़ी जगह है आप शॉपिंग कर सकते हो. उबुद है, खूटा मार्केट है, सन्नाक है, काफ़ी जगह है जहाँ पर आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हो फॉर बैग्स, क्लोथ्स, आर्टिफैक्ट्स. हेवीली बार्गेन करना पड़ता है आपको हर जगह. आपकी अगर बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो यू विल थ्राइव देयर, बट बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वहाँ पर करना पड़ता है. वहाँ पर काफ़ी ड्यूप्स मिलते हैं, ओपनली बहुत ड्यूप्स मिलते हैं फॉर ऑल द ब्रांड्स दैट यू विल सी देयर. आई एम नॉट अ फैन ऑफ ड्यूप्स, सो आई डू नॉट परचेज एनीथिंग, बट बहुत ड्यूप्स मिलती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा. एवरी नूक एंड कॉर्नर हैज़ ड्यूप्स ऑफ ऑल द लग्जरी ब्रांड्स. एंड आपको वहाँ पर स्पा, फुट मसाजेज ये सब कराना ही चाहिए, बिकॉज वो बहुत अच्छा रहता है, वेरी रिलैक्सिंग, एंड दैट्स अवेलेबल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर इन ऑल द स्ट्रीट्स ओवर देयर. सो दैट्स समथिंग दैट ऑल्सो यू शुड ट्राई. आज के लिए मेरे पास इतना ही है. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आई वॉज वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कवर. मैंने बोला मुझे सब देखना है. मेरे पास टाइम भी काफ़ी कम था, 3 दिन का टाइम था मेरे पास. तो आई ट्राई टू कवर एंड पुश इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप जब प्लान करें तो मेक श्योर दैट आप थोड़ा अपना दिन स्प्रेड आउट रखें, क्योंकि आप हर लोकेशन में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फ़ोटो खींचना चाहते हैं, रश ना हो. जैसे मेरा जो प्लान था, ऑफकोर्स मैं ट्रैवल एजेंट also did not say कि ये कवर नहीं हो पाएगा. He said that ठीक है थोड़ा पैक्ड है, बट जैसे उलुवाटो टेम्पल हमने पूरा मिस कर दिया बिकॉज वो 7 बजे के बाद बंद हो जाता है. हम वहाँ पहुँचे 7 बजे के बाद. तो ट्राई टू कीप सम गैप्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और कवरिंग दीज साइट सीइंग प्लेसेस एंड कीप इट ओपन, बिकॉज आप वहाँ जाओगे तो आपको फोटो लेने की इच्छा करेगी ही, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ही. तो एवरी लोकेशन में 3-4 आवर्स आपका स्पेंड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑल्सो द काइंड ऑफ प्लेस इट इज़. तो ज़्यादा पैक्ड मत रखिए, बट ज़्यादा पैक्ड मत रखिए जैसे मैंने रखा, तो आपके कुछ लोकेशंस मिस हो सकते हैं, बिकॉज 7 बजे के बाद वहाँ सब बंद हो जाता है. तो दैट वुड बी माई एडवाइस. एंड अगर आप ज़्यादा कीन नहीं हैं देन डोंट रश आफ्टर कवरिंग एवरी प्लेस विच इज़ देयर. लुक्स इंस्टाग्राम वर्दी होंगे, लेकिन मोस्टली places in and around Bali give the similar vibe. अगर आप मूसा पेरिना गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें बाली में, सब चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं है. All that I'm trying to say that choose the places accordingly. Don't make it a point कि आपको हर चीज़ कवर करनी ही करनी है. Similar vibe, similar pictures locations रहती हैं, तो आप choose करो, not all, but keep it limited. तो आई थिंक फाइनली इतना ही है मेरे पास अभी के लिए फ्रॉम द लिस्ट दैट आई हैव की द डूज डोंट्स व्हेन यू आर इन बाली. सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा एंड लगे रादर, एंड आप अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाएँ. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं अगेन आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. सो अभी के लिए ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ. होपफुली यू विल लाइक दिस व्लॉग एंड सी यू सून. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग.